Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, imagine this. You are sitting in your classroom and you are trying to focus on a math problem. पर बाहर क्या हो रहा है? You're constantly hearing honking, motorcycle sound, someone shouting, and there's a noise coming from construction work. So imagine living with that kind of noise every single day. You wake up, you eat, you sleep. Every time you're hearing this noise. So, for many people in our country, this isn't just imagination, it's a reality. And today we are going to talk about something we don't often think about, but it affects millions of lives every single day: noise pollution. Okay? तो pollution जब भी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? We always think of dirty air, plastic waste, water contamination. But there's another type of pollution that we can't see, yet it is all around us. Yes. What it is? Noise pollution. Legally, in India, noise is already recognized as a type of air pollutant. Okay? So, this was done under Air Prevention and Control Act. Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Okay? So, noise pollution comes under this act. Please remember. Important fact. But what exactly counts as noise pollution? Noise pollution happens when sounds in our environment reach levels that are harmful to our health and well-being. कुछ भी हो सकता है, चाहे वो व्हीकल्स का साउंड हो, लाउड स्पीकर का हो, कंस्ट्रक्शन वर्क का हो, फैक्ट्री का हो, या फिर इवन लाउड म्यूजिक भी हो. ओके, लाउड म्यूजिक भी आपको लगेगा कि नहीं, नॉइस तो नहीं है, वो नहीं. लाउड म्यूजिक ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट नॉइस पोल्यूशन. ओके, तो अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज दैट ड्यूरिंग द डे सेफ लिमिट ऑफ नॉइज इज 55 डेसिबल. ये सेफ लिमिट है कि इतना ही नॉइज होना चाहिए रेसिडेंशियल एरिया में. मतलब कि इतना वॉल्यूम होना चाहिए जहां पे आप रह रहे हो. एंड एट नाइट safe limit is 45, because our body needs peace, it needs quiet place to rest, right? तो जो सेफ लिमिट है रात के लिए वो और ज्यादा लो है. बट देखो, प्रॉब्लम क्या है? इंडियन सिटीज में, बहुत सारी इंडियन सिटीज में, it go far beyond these safe limits. Traffic corridors in cities like Delhi, Mumbai, Bengaluru, it often crosses 70 decibels. 55 डेसिबल सेफ लिमिट है, लेकिन आप इतना तो समझ पा सकते हो कि राइट, कि 55 अगर सेफ लिमिट है, तो अगर कहीं का नॉइज पोल्यूशन 70 डेसिबल तक जा रहा है, देन इट इज कंसर्निंग, इट इज डेंजरसली हाई. एंड रिमेंबर, डेसिबल स्केल इज नॉट लीनियर. A 10 decibel increase doesn't mean a little more noise. It means it is 10 times more intense. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं तो 55 डेसिबल होता है. तो अगर कोई रोड है जो बिजी है, एकदम ट्रैफिक से पूरी भरी हुई है, देन इट इज 70 डेसिबल. ओके, तो 55 से अगर 70 डेसिबल तक जा रहा है, तो दैट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल जंप. इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम अ काम चैट टू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ रोरिंग ट्रक. तो अगर हम ये माने कि 55 से 10 डेसिबल इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें ना जो डेसिबल इंक्रीज नॉइज का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा और शोर होने लगे. नहीं, इसका मतलब है उसकी इंटेंसिटी 10 टाइम्स और वर्स हो गई है. तो इमेजिन करो कि आप एकदम से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे आप करते हो जिस लेवल पे, वो आप कर रहे हो, एकदम से आपको वहां से शिफ्ट करके वहां पे खड़ा कर दिया जाए जहां पे अ, एक ट्रक का हॉर्न बज रहा है. सो इट्स लाइक दैट. एंड नॉइज इजंट जस्ट अनोइंग. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनोइंग है, इट्स अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड. Doctors and researchers have found that constant exposure to loud noise can cause a range of health problems. क्या क्या health problem हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हाइपरटेंशन. ओके,
हाइपरटेंशन हो सकता है, high blood pressure. When we are exposed to loud noise, our body goes into stress mode, and this raises our blood pressure and heart rate. So this further increases the risk of heart disease. तो हमारी heart disease होने के chances बढ़ जाते हैं. ऊपर से देखो, sleep disruption भी होता है. Even while sleeping, our brains can register noise. ठीक है, अगर हम सो रहे हो लेकिन नॉइस बज रहा, आप बोलोगे कि नहीं हम तो सो रहे हैं पीसफुली, कुछ नहीं होता, लेकिन हमारा जो माइंड है वो कॉन्स्टेंटली नॉइस को रजिस्टर करता रहता है. सो इफ यू हैव बीन वोकन अप बाय लाउड साउंड, यू नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट फील्स. ओवर टाइम डिस्टर्ब्ड स्लीप कैन लीड टू फटीग, पुअर फोकस एंड इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज. ठीक है, और जो नॉइस से क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉइस इट ऑल्सो ट्रिगर स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल. ओके, इट ट्रिगर्स द स्ट्रेस हार्मोन. तो इससे क्या होगा, लोगों को एंग्शियस फील करते हैं, इरिटेबल फील करते हैं, दे फील टायर्ड ऑल द टाइम. एंड फॉर चिल्ड्रन, constant noise can affect their ability to learn, their ability to concentrate and even remember things. Imagine you're trying to study math while someone is drilling a wall next to you. कैसा लगता है, राइट? तो अफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म अफेक्ट भी है. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से क्या होगा, परमानेंटली डैमेज हो सकता है, हियरिंग इश्यूज हो सकते हैं. सो ओवर टाइम दीज कंडीशंस कैन शॉर्टन लाइव्स एंड इट कैन रिड्यूस ओवरऑल वेल-बीइंग. सो नॉइस इजंट जस्ट एन इरिटेशन, इट्स अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस. अब अगर रियल लाइफ के एग्जांपल ले, देखो स्ट्रीट वेंडर्स एंड ट्रैफिक पुलिस एंड डिलीवरी वर्कर्स एंड दे आर ऑफन एक्सपोज टू हाई लेवल्स ऑफ नॉइस ऑल डे लॉन्ग. हम तो जैसे क्या है कि हम क्वाइट नेबरहुड में रह रहे हैं, हम बच सकते हैं, बट कई बार लोग दे कांट escape this constant roar. So for them, noise is not an occasional nuisance. It's a it's sort of a daily occupational hazard. ओके, और अगर हम बात करते हैं इंडिया में क्या लॉज हैं क्या, देखो स्टूडेंट्स, नॉइज पोल्यूशन, देर आर there's a rule called noise pollution regulation and control rules. इसमें जो लिमिट सेट कर रखा है, क्या लिमिट है कि फ्रॉम 6 AM to 10 PM it will be 55 and at night it will be 45. But sadly these rules are rarely followed or enforced. So why is this happening? Researchers ने 3 main reasons ढूंढ निकाले. सबसे पहला रीजन क्या है कि unlike air pollution, where we have satellites and sensors to track air quality in real time, noise pollution का जो monitoring है, it's very limited. In most cities, there are few sensors and the data is often incomplete or outdated. This makes even the policy makers blind. मतलब they don't even fully know how bad the problem is. Second is weak enforcement. Even when noise rules exist, there's very little action taken. कल्चर फैक्टर भी है, देखो इसमें कल्चर फैक्टर है. कल्चर फैक्टर कैसे है, जैसे आपने फेस्टिवल्स के टाइम पे देखा होगा, लाउड म्यूजिक बजता है, कांस्टेंट हॉकिंग ऑन रोड्स, noisy celebration are seen as normal. Okay, but without a clear understanding of how harmful this is, even officials hesitate to enforce these rules strictly. थर्ड क्या है, अब नॉइज रेगुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे हैं. ठीक है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, पुलिस भी है. बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्कैटर्ड, दिस कंफ्यूजन, दिस डिलेस एंड नो स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी. रिजल्ट क्या है, नॉइज रिमेन्स अ क्रॉनिक अनएड्रेस्ड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस. सो व्हाट कैन वी डू टू टैकल दिस इशू? सबसे पहले तो देखो, just we have strong campaigns for clean air, clean water. Noise must also be taken seriously. So we need better monitoring. We need to observe like where the noise pollution is high. A modern technology like machine learning can help identify where the noise is coming from. Okay,
और देखो, जब सिटी प्लान होती है, कोई भी सिटी प्लान होती है, तो सब ट्रीज और जो ग्रीन बेल्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रीज और पार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या करते हैं वो? नॉइस को एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रीज एंड पार्क्स, इट कैन एब्जॉर्ब साउंड, इट कैन एक्ट एज नेचुरल नॉइस बैरियर्स. So residential areas should be separated from high noise zones. Okay? तो ये जो ग्रीन ट्रीज है, देखो कितने फायदे होते हैं ट्रीज के, राइट? और रेगुलर स्टडीज शुड ट्रैक हाउ नॉइज अफेक्ट्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. तो इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा, है ना? अवेयरनेस कैंपेन की बहुत ज्यादा जरूरत है. Religious and community leaders can help educate people about keeping noise levels down during events and celebration. या फिर अगर जो रूल है, एटलीस्ट एक रूल को फॉलो किया जाए, लिमिटेड टाइम तक ही किया जाए. ऑल राइट. सो नॉइज pollution, students, it doesn't affect everyone equally, and the most vulnerable groups are like low income families who are living near busy roads, street vendors, traffic police. They are often the most exposed to noise, but they also have the least resources to protect themselves. जैसे एयर प्यूरिफायर एक लग्जरी है, क्वाइट होम्स आर ऑल्सो प्रिविलेज, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड. ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सबके पास है. कई बार बहुत से इश्यूज होते हैं कि नहीं अफोर्ड नहीं रह सकते वहां पे. बहुत सारे रीजंस होते हैं. इसीलिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि इक्विटी मस्ट बी सेंट्रल. ठीक है? जो एक राइट राइट टू क्वाइट राइट टू क्वाइट should be a luxury for the rich. It must be, should not be a luxury. It should not be a luxury. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों के पास, अमीर ही अफोर्ड कर पाए. It must be a basic human right for everyone. All right? तो अगर हम नॉइज रिडक्शन को भी पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी बनाएंगे, तभी हम लाइफ को सेव कर सकते हैं. हम जो अर्बन लिविंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है? So thank you for joining us today, students. Stay tuned for our next episode. And until then, take a deep breath and listen to the quiet around you. Bye bye.